friends, myself Rasika Pagaria from Aram Junior College. We have started with the views on education. In that we studied educational theory, then methods of Plato's education, then we studied about the features of Plato's system of education. Today we are going to start with the new point, that is the curriculum of education. Plato's educational curriculum could be broadly divided into two stages, that is the elementary and higher. See, प्लाटो का जो एजुकेशन सिस्टम था वो एजुकेशनल करिकुलम यानी सिलेबस वॉट एवर वी कॉल क्या क्या है उसमें, इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू स्टेजेस. फर्स्ट इज द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी इज द हायर. द एलिमेंट्री or basic education was further subdivided into three stages. The first stage lasted from birth to the age of 6 years. See, उसका education system जो भी था, later the elementary system was divided into three parts. See, first the education curriculum was divided into two parts. First is the elementary and second is the higher. Now the elementary or the basic education was further subdivided into three stages. The first stage is the stage from birth to the age of 6 year. See, उसमें का first stage कब से कब था? Birth to the 6th year. At this stage, both the boys and girls were to be given education in language. The children were also to be taught basic facts of religion. See, first stage में क्या है यहाँ पे? It is of 0 to 6 years. इसमें बच्चों को they teach about the language. Then they teach them the basic fact and their religion. Now any education boys and girls दोनों को दिया जा रहा है. हाँ, a basic fact of religion institutions etc. At the second stage, extending from age of 6 to 18. और फिर next stage क्या है? Second stage is from 6 to 18 years. During this period, the children was to be taught music as well as gymnastics. Second stage पे up 6 to 18 years case is the second stage. In that stage, you are taught about the music and the gymnastics. Music was essential for the development of soul and gymnastics for the development of body. See, music क्यों सिखाया जा रहा है और जिम्नास्टिक क्यों सिखाया जा रहा है? म्यूजिक की ज़रूरत क्या है? म्यूजिक वॉज इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोल. आपका सोल डेवलप होने के लिए, लाइक आपका माइंड शांत रहने के लिए, उसको शांतता से वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए. इट शुड रिमेन काम. दैट्स वाई म्यूजिक इज इसेंशियल. एंड जिम्नास्टिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. आपका बॉडी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तभी आप सब कुछ कर पाओगे. और म्यूज़िक इसलिए ताकि आप मेंटली भी फिट रहो, स्ट्रॉन्ग रहो, स्टेबल रहो. Thus, during the second stage, both the body and soul were to be developed. See, in second stage, both the body and soul are to be developed. According to the Barker, these stages was meant to habitate the young soul which is still in the stage of feeling as it should feel about such problem as it has to solve and in the strength of feeling. See, second stage में क्या बोलते हैं? बार्कर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे second stage में कि आप इतने strong बन जाओ young age में ही, you will be stable, you will be strong, right? So that you can आप अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सको. Ingrained by habit to do as it ought to do without knowing the why and wherefore of this action. The third substage extended from 18 to 20 years of age. See, first stage 0 to 6 years, second stage 6 to 18, and third stage is 18 to 20 years. Both men and women were given compulsory military education at this substage. See, इस स्टेज में क्या हो रहा है?
मेन एंड वुमेन दोनों को कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन दिया जा रहा है। द हायर स्टेज ऑफ एजुकेशन लास्टेड फ्रॉम 20 to 35 years of age. See, ये क्या था? इट वॉज द एलिमेंट्री। नाउ हायर एजुकेशन कब से था? इट वॉज फ्रॉम 25 to 30 years. You have been given higher education. At the end of 20 years, there was to be at least of those showing aptitude for science and philosophy were to be given for the education for 15 years. See, at the age of 20 years, वहाँ पे क्या था? टेस्ट वगैरह रहते, एप्टीट्यूड टेस्ट रहता था, साइंस एंड फिलोसॉफीज में टेस्ट रहते थे, ताकि और 15 साल आप आगे अच्छे से पढ़ सको। The scheme of higher education has to be described by Sabine as most original as well as most characterized proposal of the Republic. See, ये जो scheme of higher education क्या है, इसको क्या बोला है, सबीन ने क्या बोला है? It is essential as a ज़रूरी है for the Republic. The higher education was to make the recipient wise. जो भी हायर एजुकेशन लेता है वो उतना वाइज बन जाता है। द हायर एजुकेशन वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू सब स्टेज। यहाँ पे हायर एजुकेशन क्या हो गया? इट हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू स्टेजेस। वन इज फ्रॉम 20 to 30 एंड द सेकेंड एक्सटेंडेड फ्रॉम 30 to 35। नॉर्मल एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें 3 स्टेजेस थे। वन वॉज फॉर 0 to 6 years, 6 to 18, and then 18 to 20. After 20, you can start with the higher education, which is divided into again 2 parts, that is 20 to 30 and second stage from 30 to 35. During the first stage, including the study of subjects like mathematics, astronomy, logic and other science. फर्स्ट स्टेज में आप क्या पढ़ रहे हो? ड्यूरिंग द फर्स्ट लाइक हायर स्टैंडर्ड का फर्स्ट स्टेज है, उसमें आप क्या पढ़ रहे हो? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड अदर साइंस। ही इंसिस्टेड ऑन द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एंट्रेंस फॉर इस एकेडमी। सी, प्लेटो ने क्या बोला कि ज्योमेट्री भी बच्चों को डाल देना चाहिए। क्या होगा? ज्योमेट्री से वो एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्री ज़रूरी है। एट द स्टेज ऑफ 30, another selection test was held and only those who qualified it gives them a future training for 5 years. See, at the age of 30 आपको एक और सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम पास करना है। इफ यू पास दैट एग्जाम देन यू कैन गो फॉर अदर स्टडीज विच इज ऑफ 5 years up to the age of 35. हायर एजुकेशन में आपको सर्टन स्टेजेस हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पास कर लो और आप एक टेस्ट दो और उसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाओ, तभी आप सेकेंड स्टेज दे सकते हो। एंड अगर आप पास कर चुके हो देन यू कैन स्टडी एट द एज ऑफ 35 तक आपका पूरा पढ़ाई हो जाता है। ड्यूरिंग द सेकेंड सब स्टेज emphasis was to be laid on dialectics because according to Plato, dialectics was the only system of knowledge through which highest reality could be achieved. See, सेकेंड स्टेज में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब स्टेज में we give importance to dialectics। इसमें क्या हो रहा है, क्यों ज़रूरी है? उससे आपको रियलिटी चेक पता चलती है, रियलिटी के बारे में पता चलता है। This stage of education was essentially meant to create the philosopher king. The सी, ये जो एजुकेशन का लास्ट टेस्ट है उसके आपने को क्या मिलेगा? आउटकम क्या मिलेगा? फिलोसोफर किंग के सारे टेस्ट पास हो जाते हैं। द फिलोसोफर किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू रूल फ्रॉम 35 years to 50 years of his age, then retire and resume study for the कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड। सी, फिलोसोफर किंग बन गए तो आप एट द एज ऑफ 35 किंग बनते हो और टिल द एज ऑफ 50 यू विल रिमेन एज अ किंग। आफ्टर दैट यू आर रिटायर्ड और फिर आप मोक्ष के और पाने का दरवाज़ा उसके लिए लाइक योर सोल शुड रेस्ट इन पीस, फॉर दैट यू शुड वर्शिप फॉर गॉड, लाइक यू गो ऑन डूइंग मेडिटेशन, भगवान का नाम जपो। प्लस प्लेटो investigated as a lifelong process for the philosopher king। अगर आपको philosopher king बनना है तो आपको
जिंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी. सो दिस वेर द Plato's stages of education. Sorry, my now अभी अपन ने इम्पोर्टेंट फीचर्स देखे, राइट, फीचर्स देखे, करिकुलम देखा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक एट हिज ड्रॉबैक्स ऑल्सो. प्लेटो के करिकुलम के कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. लेट अस लुक ओवर दैट. Plato's scheme of education has been subjected to much criticism. Mainly, the following charges have been leveled against it. See, Plato केस में क्या है, बहुत सी ड्रॉबैक्स है. क्या ड्रॉबैक्स है? लेट अस हैव लुक एट इट. क्या कुछ तो ड्रॉबैक्स पक्के ही होंगे, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं वो अपन अभी देखेंगे. फर्स्ट वन इज it is alleged that Plato's scheme of education was meant for the graduate. See, सिर्फ ग्रेजुएट के लिए है ऐसे बोला जा रहा है वो, राइट, बट ऐसा है क्या? इट इज़ मेंट फॉर ग्रेजुएट. तो बाकी सब लोगों के लिए क्या रहेगा फिर? हाँ, ग्रेजुएट क्लास, और जो बाकी जो स्लेवरी क्लास है उनके लिए क्या नहीं है. और जबकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उस वक्त क्या थे? पीसेंट एंड आर्टिसंस है, वेर नॉट टू बी कवर्ड, वो उसमें आते ही नहीं थे. नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इग्नोर्ड मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन बी कॉल्ड अ हेल्दी सिस्टम. सी, आप मेजोरिटी पीपल इग्नोर कर रहे हो, मेजोरिटी जो आपका क्राउड है उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपका ये एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो गया? इन द वर्ड ऑफ सबीनी, it is extraordinary that Plato never discussed the training of the artisan and does not ever make clear how, if at end, they are to be included in the plan of elementary instruction. See, in the words of Sabine, it is क्या बोल रहा है? ये प्लेटो का प्लेटो ने ट्रेनिंग में आर्टिसंस के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, और एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये आर्टिसन पीसेंट किधर है ही नहीं. दिस फैक्ट इलुस्ट्रेट दैट सरप्राइजिंगली लूजनेसनेस एंड जनरलिटी ऑफ हिज कंक्लूजन. ये फैक्ट से पता चलता है उसने इनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं. सेकेंडली, प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, लाइक आप जन्मते ही एट द एज ऑफ 35 यू कंटिन्यू गो ऑन स्टडिंग. होता है क्या इतना स्टडी करना पॉसिबल है क्या अभी? हाँ, अब जिंदगी भर पढ़ाई करते रहोगे, देन व्हेन आर यू गोइंग टू लुक आफ्टर योर फैमिली, व्हेन आर यू गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, राइट? सो इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो. आफ्टर डेवलपिंग a majority portion of his life to educate, along the ruler are hardly left with any time to develop other pursuit. अभी आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो आप बाकी दूसरी चीज़ें कब करोगे? In other words, they are hardly left with an initiative which operate against the interest of the society. मतलब हार्डली कोई टाइम मिलता है जिससे आप सोसाइटी का भला कर सको, सोसाइटी में कुछ कर सको. Thirdly, his scheme of education is far removed from reality. Like जो उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो रियलिटी से काफ़ी दूर है. It can only create academic theorists who are incapable of dealing with the hard reality of life. See, it can only create academic theories who are incapable of dealing with the hard reality of life. It is indeed difficult to understand how a person who has undergone a rigorous technical education 35 years shall be able to deal with the reality effectively. अच्छा, आप यहाँ पे बोल रहे हो आपका एडुकेशन इट गोज टिल द एज ऑफ 35. अगर आपका एडुकेशन एट द एज ऑफ 35 तक कंटिन्यू करते रहोगे, उसके बाद क्या गारंटी है कि आप सब कुछ अच्छे से डील कर पाओगे? है, इज देयर एनी गारंटी कि आप सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, सब कुछ अच्छे से डील कर पाओगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी है ही नहीं, क्योंकि आप एट द एज ऑफ 35 तक आप कंटिन्यू खाली स्टडी करते रहोगे,
खाली खाली पढ़ाई के पीछे भागते रहोगे तो आपका आउटकम क्या मिलेगा, इसकी रियलिटी कुछ प्रॉपर आउटकम मिलेगा, इसको कोई गारंटी है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है आपकी। फोर्थली, Plato's plea for concessionship of art and literature is highly derogatory in so far is not likely to destroy the creative instinct of the artists and poets but also bound to influence free flow. See, Plato's art and literature क्या है? ये क्या है? ये जो उनके अंदर जो आर्टिस्ट रहते हैं, पोएट करने की जो कला रहती है, आप 35 ईयर्स तक पढ़ते बैठोगे, ये जो आपकी कला है उसका क्या होगा? इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके अंदर वो स्किल रहेगा, वो ऐसे ही मर जाएंगे, वो ऐसे ही दब जाएंगे, आप 35 ईयर्स तक पढ़ते जाओगे तो। फिफ्थली, द स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड investigated by Plato is not logical in so far as there is relation between one stage and the other stage. See, fifth क्या बोलता है? The scheme of education by Plato is no logical so far as there is no relation between one stage and other. See, सब स्टेजेस, हर स्टेज एक दूसरे से लिंक्ड है क्या? नहीं। एक एक स्टेज पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों स्टेज में कोई लिंक नहीं है, राइट? तो फिर इतने स्टेजेस दिए ही क्यों है आपने? During the first stage, he insisted on study of music and gymnastics, which are hardly capable of developing thinking capacity among the youngster. See, आप फर्स्ट स्टेज में क्या दे रहे हो? म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक दे रहे हो। वो इतने केपेबल रहते हैं क्या इनके बाद, मतलब म्यूजिक सोचे समझे, म्यूजिक का यूज़ कैसे होगा उनकी लाइफ में, इसका कोई पॉइंट है क्या? नहीं है। यंगस्टर में उस स्टेज में कोई पॉइंट नहीं है। द सेकेंड स्टेज इम्प्लाइज द यूज ऑफ reasoning faculties. See, the second stage implies the use of reasoning faculties. It is difficult to understand how the recipient who have not developed thinking capacity during the first stage of education shall be capable to adjust in the second stage. See, अगर आप फर्स्ट स्टेज में ही अच्छे से एडजस्ट नहीं पा रहे हो, फर्स्ट स्टेज में ही आपका अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप सेकेंड स्टेज पे तुरंत कैसे थिंक कर पाओगे लॉजिकली वगैरह? सारा पॉसिबल है क्या? उतना आपका थिंकिंग डेवलप हो चुका है क्या? नहीं। जब आपको उतना थिंकिंग डेवलप ही नहीं हुआ है तो आप कैसे सब कुछ क्लियर करोगे? इन प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन नो प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन में क्या है यहाँ पे? सॉरी, सिक्सली, in Plato's scheme of education, no provision exists for imparting education in the part of administration. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम करना है आपको, कैसे काम करना है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बता गया है। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना भी एक आर्ट है ना, एक तरीका है कैसे आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी आप हैंडल करोगे, हाउ विल यू डील विद द अदर पीपल एंड ऑल, ये सारी एक कला रहती है। ये कला ही, आप इन कला के बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे सारा? द फिलोसोफर किंग हु इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर द स्टेट इज नॉट गिवन एनी ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अदर अलाइड प्रॉब्लम। द फिलोसोफर किंग हु इज रिक्वायर्ड, एक जो फिलोसोफर किंग है उसको स्टेट का रोज एडमिनिस्ट्रेशन देखना ज़रूरी है। हाँ, उसको अगर आप ट्रेनिंग आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दोगे तो वो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ अ फिलोसोफर किंग ट्रेन्ड इन म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स एंड डायलेक्ट शैल बी एबल टू डील विद द रियल प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप म्यूजिक में अच्छा बना रहे हो, जिम्नास्टिक अच्छा करा रहे हो, डायलेक्टिक्स में होशियार बना रहे हो, बट क्या गारंटी है कि वो अपने रियल प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रियल प्रॉब्लम आते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम आते हैं, वो उसके साथ कैसे डील करेगा? इसका कोई आइडिया है? इसका कोई ट्रेनिंग है? इसका कोई प्रोसीजर है? इसका कोई थॉट इस पर ध्यान दिया गया है? नहीं। इन सब इस पे आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स का कैसे चलाते हैं, इस पे थोड़ा भी ध्यान दिया गया नहीं है। 7th point, Plato's uniform pattern of education is contemporary to human psychology and contrary to the richness of society which depend on diversity of growth. See, यहाँ पे पैटर्न ऑफ एजुकेशन कैसा हो गया? यहाँ पे
इट डिपेंड ह्यूमन साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। हाँ, और रिचनेस ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा डिपेंड है। लाइक आप जितने ज़्यादा पैसे वाले आप उतना अच्छा एजुकेशन ले पाओगे, उतना आपका थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा। ही हार्डली मेक एनी प्रोविजन फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। उसने कोई प्रोविजन नहीं दिया फॉर द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। 8. Plato Plato seemed to be constantly wavering between the idea of action and idea of contemplation। See, प्लेटो ने ऐसा कॉन्स्टेंटली आइडिया ऑफ एक्शन एंड आइडिया ऑफ कंटेम्पलेशन में कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे बोला है। लाइक आइडिया ऑफ एक्शन एक है ना, तो उसी हिसाब से चलो ना, नहीं, अलग 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 सारा ऊपर नीचे चल रहा है यहाँ पे। His philosopher kings are trained to become good ruler, but they find their fulfillment in the life of contemporary of the ideas of good। See, आप एजुकेशन 35 तो ले लोगे, आप रूलर की पूरी ट्रेनिंग ले रहे हो, बस क्या वो ज़िंदगी में हर चीज़ में खरे उतर पाएंगे? डू दे हैव द आइडिया ऑफ गुड? लाइक ज़िंदगी एक्चुअल में कैसा रहना चाहिए इसका कोई आइडिया है उनको? नहीं है। Despite the shortcomings and defects of Plato's scheme of education, it cannot be denied that it was an improvement on the system of education found in Athens and Sparta। See, despite this shortcoming, Plato's education scheme बहुत से चेंजेस लाए गए हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में इन एथन एंड स्पार्टा। अपन ने इतने ड्रॉबैक देखे, फिर भी उसका एजुकेशन स्कीम वहाँ पे बहुत अच्छे से चला उस वक्त की वजह से बहुत लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत से लोगों ने एजुकेशन लिया, राइट। क्योंकि अपन ने एथेंस और स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम कैसा था दिखा था। लाइक एथेंस में फुली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स और स्पार्टा में इट वाज ओनली ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उस पर डिपेंड था। तो इसने क्या किया था, प्लेटो ने दोनों को कंबाइन किया था, राइट। कंबाइन करके उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, बट उसके साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे अपन देखते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक कोई अच्छा रहता है, बुरा भी रहता है। उसी तरह उसकी एजुकेशनल स्कीम्स जो है, एजुकेशनल जो थेरीज है, उसके भी कुछ प्रोज है कॉन्स है। अपन ने कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखे हैं। नो डाउट इस थेरी हैड मैनी ड्रॉबैक्स, बट इट वॉज सक्सेसफुल एट दैट टाइम। नो डाउट where we were despite the shortcoming and defects of Plato's scheme of education, it cannot be denied that it was an improvement on the system of education found in Athens and Sparta। स्पार्टा में एजुकेशन सिस्टम में बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए हैं। He included the good points of both the system in his scheme। उसने गुड पॉइंट्स अपने दोनों स्कीम में यूज किए हैं। No doubt, the scheme invented by him was quite unrealistic in so far it was a lifelong process and the curriculum was far removed from reality of life। See, अपन ने देखा उसके स्कीम में ड्रॉबैक ज़रूर थे और बहुत ज़्यादा एजुकेशन दिया हुआ है और करिकुलम पे बहुत ज़्यादा लाइफ रिलेटेड करिकुलम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। But he certainly deserves credit for emphasizing that education must aim at the moral as well as physical development। लेकिन देखो, उसने एक चीज़ अच्छी प्रूव की है, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई 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 ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसलिए उसने म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। सो एजुकेशन एम्स एट Plato's education system aimed in moral as well as physical development। He insisted on tests to weed out the unit and favored higher education only for the deserving। उसने हायर एजुकेशन कौन ले सकता है, जो टेस्ट पास कर सके। जैसे अपन देखते हैं, आपको इंजीनियरिंग बनना है तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होगी। आप एंट्रेंस में जितना अच्छा स्कोर करोगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, राइट। सो सेम थिंग हियर ऑल्सो, उस वक्त भी उनके एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही था। अगर आपको हायर एजुकेशन लेना है, यू आर सपोज टू पास द टेस्ट। इफ़ यू पास द टेस्ट देन ओनली यू कैन
गो फॉर द हायर एजुकेशन. सो जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं वही हायर एजुकेशन ले सकते हैं. ही ट्राइज टू combine theory and practice by arguing that mere generalization and abstraction are worthless unless they are tested in the furnace of experience and found enduring in competition with cunning, fraud, defect and sporency. उसने ट्राई किया कि कनिंगनेस, जो फ्रॉड वगैरह होते हैं ना, इन सब से बच्चों को दूर रखे, राइट. और टेस्ट वगैरह है ना, टेस्ट जो भी कंडक्ट कर रहा है इट शुड गो ऑन मेयरली फेयरली बेसिस. लाइक आप टेस्ट ईमानदारी से करो, सब कुछ ईमानदारी से करो. फ्रॉड, सेल्फिशनेस, राइट, कनिंगनेस, इन सब को उसने बाजू में रखा था. सो दिस मेक द क्राइटिसिज्म ऑफ प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन. हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉस्ट होते हैं, वैसे इसके एजुकेशन सिस्टम के भी प्रॉज एंड कॉस्ट थे. बट उस वक्त उनका ये एजुकेशन सिस्टम एथेंस एंड स्पार्टा में बहुत यूजफुल रहा, बहुत अच्छा चला. So we will end up our lecture here today. In next lecture we'll start with the theory of justice.